practical, also physical practical that you are going to do um, using conductivity. इसी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. तो now you can see that देखो H plus का कितना, what is the ionic mobility? Now let's talk of 36. everything in terms of 10 raised to minus 4. Okay, so it is 36. H plus Cl minus, how much it is? 7. 8 है, 7. 7.9 यानी 8 है. Na plus 5.2. 5.2. and you need OH minus. कितना है? 20. 20. Okay. Now, what is the aim of the experiment that you will be given is that you have to find out. Now you're going to do a titration. Let's say you're going to have, first you'll have HCl over here. बीकर में हम लोग क्या लेंगे? HCl. From the burette, you're going to add NaOH. Okay, and of course you have a conductivity cell here. Now, initially, what do you have in your solution? H plus and Cl minus. You have H plus and Cl minus. So, let's suppose you have some amount of HCl. So, HCl being a strong electrolyte will dissociate into H plus and Cl minus, right? Yes, sir. So, the ionic mobility of H plus is very high, 36 है. Cl is ठीक है, छोटा है, about 8. So, शुरू में आपका conductivity, let's say, now let's put a graph. ये मेरा, this is my volume of NaOH and this is my conductivity. Okay, conductance, let's say. शुरू में at when you add zero volume of NaOH, let's say the amount of conductance is this one. Now, as soon as you add, let's say, 1 drop of NaOH, क्या होगा? Now, NaOH, again being a strong electrolyte, is Will Na dissociate. plus and OH minus. So, what will happen is Na plus and Cl minus will combine to form NaCl. NaCl. NaCl again is a strong electrolyte, तो क्या हो जाएगा? Na plus and Cl minus. तो वो दोबारा टूट जाएगा. But what about this? H plus and OH minus, ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा? Water. 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 और water strong electrolyte है कि weak electrolyte है? Weak. Weak. तो क्या हो जाएगा? Dissociate होगा कि It undissociate? will remain undissociated. So, Hmm. number of ions क्या हो जाएगा? Because of adding of NaOH, आप सोचो. Decrease. शुरू में आपका number of ions कम हो जाएंगे. तो conductance क्या हो जाएगा? Conductivity, conductance कम क्या हो हो जाएगा? जाएगा. कम कम हो होगी. जाएगा. The first drop will be because by adding NaOH आप क्या कर रहे हो? You are removing the fast moving H plus from the solution. Is this clear? Yes, sir. जी सर. देखो ऊपर से NaOH डाल रहे हो, Na का तो ठीक है, Cl के साथ कुछ होता नहीं है. It makes something, then it breaks, so it is again dissociated. So Cl minus का जो भी conductivity था वो ज्यों का त्यों रहेगा, करेक्ट? लेकिन H plus का जो conductivity था, वो conductance था, वो क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि वो OH के साथ कंबाइन हो रहा है. OH के साथ कंबाइन होके वो दोबारा डिसोशिएट नहीं होता है, so it becomes H2O, so the conductivity decreases, conductance decreases. Is this clear? So yet we still have Na plus now. हाँ, लेकिन राजा Na plus का कंडक्टेंस कितना है देखो ने, इसका स्पीड कितना है देखो, 5 times लेस है ना बेटा, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा. इज दिस क्लियर? मैंने नहीं कहा कि जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा. Okay, sir. Okay, now you add one more drop.
so it will take out more H plus, Yes, sir. तो कंडक्टेंस और भी कम हो जाएगा. तो कंडक्टेंस आप देखेंगे कि इट विल डिक्रीज. ये कब तक डिक्रीज होगा? जब तक पूरे H प्लस नहीं हाँ, जब तक कंज्यूम हो गए. तुम्हारे पूरा H प्लस जो है, जब तक वो कंज्यूम नहीं होगा, दिस विल कीप डिक्रीजिंग बिकॉज द सेम फिनोमिना इज गोइंग टू टेक प्लेस. इज ओके? जी सर. But as soon as your as soon as H plus is over, now what you are doing is you are adding NaOH. अब ये जो OH माइनस है ये फ्री हो जाएगा. नहीं? Okay. सर NaOH से फ्री हो जाएगा. Okay, let me go again. पहले okay, जस्ट तुम लोग यहाँ पे ये एक चीज ध्यान रखो, H plus moves very fast, right? About 6 times or 7 times of Na plus and about 6 times of Cl minus, and OH minus moves relatively fast. It is almost 2-3 times of Na plus, but it moves at about at a speed half of H plus. ये ध्यान रखो, बाकी नंबर्स जाने दो. समझ में है? Yes, sir. तो आगे मैं लेट मी खाली ये करता हूँ. ओके, अभी आपने क्या किया? लेट्स सपोज ये मेरा बीकर है. ओके, एंड लेट्स से आई हैव this blue is, let's take only 5 of them. I have taken 5 HCl which I put in water, right? तो कितने H plus होंगे? I have just taken 5 HCl molecules which I put it in water. तो कितने H plus होंगे? 5. 5. So this is nothing but H plus. ठीक है? Let's say येलो दिख रहा है कि येलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ब्लैक करता हूं. दिस इज माई Cl माइनस. तो कितने Cl माइनस होंगे? 5. 5. 5. 1 2 3 4 5. Okay, now this Cl minus moves about 1/4 times of H plus. तो आपका जो कंडक्टिविटी है, करंट जो होगा, इट इज मेनली लाइक अबाउट, अगर इफ यू हैव टोटल करंट, मोस्ट ऑफ द करंट विल बी बिकॉज ऑफ H H plus. plus. H plus, and very few of them will be because of Cl minus, not because you have more H plus, just because that H plus moves much faster. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नया कौन सा कलर लूँ? एक ग्रीन लेते हैं. ग्रीन is, let's say, Na plus and कौन सा कलर छूट गया? Pink. The orange. पिंक, और ये एक जैसा लगेगा. ऑरेंज, ये ब्राउन करता हूँ. सर रेड ले लो. रेड भी, ये रेड ना बहुत, देखो सिर्फ अलग दिख रहा है क्या? देखो मुझे बताओ, अलग दिख रहा है पिंक और ये? हाँ सर. ओके, जी sir. ये सपोज मेरा OH माइनस है. नाउ रिमेंबर, दिस मूव्स द फास्टेस्ट, दिस मूव्स सेकंड फास्टेस्ट, एंड दे आर अबाउट द सेम. ये ध्यान रखो. ओके जी sir. ओके, नाउ आपका यहाँ से, मैंने यहाँ से क्या ब्यूरेट से क्या डाला?
NaOH. Anyway, NaOH. now let's draw this diagram again. After you have added one drop or one NaOH, ये केस कैसा रहेगा? How many blues will be there? 4 blue. Why? Because one blue has combined with one red to form water. Right. So you'll have 4 blues. Black कितने होंगे? 4. 5. 4 5. क्यों होगा? 4 कौन था? Fatima. 4 क्यों होगा बेटा? ओके 5 क्यों होगा? कोई वो बताओ 5 आगे क्यों होगा? डिसोसिएट हो जाएंगे। और बस इतने रहेंगे, 9 रहेंगे और क्या रहेंगे अभी? सर Na+ भी 5 रहेंगे। Na+5 रहेगा। तूने एक NaOH डाला है राजा। एक NaOH डालने पे एक 5 है ना। so you'll have हाँ सर, सॉरी। 1. This is 1 NaOH. ठीक है? Now let's just look at this carefully. देखो तुम्हारा जो ब्लैक था वो तो वैसे को वैसे ही है। Yes. So effectively what you have Yes, done sir. is you have replaced one blue with one green. आपने यही किया ना? तो आपका इनकी वजह से तुम्हारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? स्लो। पहले से स्लो हो जाएगा। यानी अगर तुम्हारा पहला वैल्यू यहाँ पे था, दूसरा वैल्यू यहाँ पे आएगा। ये तुम्हारा कंडक्टेंस है, ये तुम्हारा NaOH का नंबर है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, तो पहले मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। मैंने 2 NaOH डाला, अब क्या होगा बताओ मुझे? 3 ब्लू, 2 ग्रीन, 5 ब्लैक। 3 ब्लू, 2 green. 2 ग्रीन, 5 ब्लैक। ना पहले के मुकाबले में अभी आपने क्या किया? What have you done basically? You have replaced 1 more 1 H H plus, plus 1 H plus with Na+. 1 Na plus। तो Na plus का जो स्पीड है H plus के कंपैरिजन में कम कम है। है, कम है, तो तुम्हारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो डिक्रीज। जाएगा। समझ में आया ये? इज ओके अभी तक? यस सर। This is 0, this is 1, this is 2, this will be 3, this will be 4। 4 में क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, बट आप बताओ, जब आपने 4 ड्रॉप डाला तो क्या हो जाएगा? 1 blue, 4 green और 5 black. ओके जब आपने 5 डाला तो क्या होगा आप बताओ मुझे? So there will be no H plus. 5 green, 5 black. Okay, when you add 5 of this, you'll have you'll have 5 green and 5 black। आप मानते हो इसका कंडक्टेंस अभी तक जो हम लोग ने बोला है, इसमें सबसे कंडक्टेंस इसका कम होगा अभी तक में। इसलिए देखो यस सर। कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ तक ठीक है? क्लियर? यस सर। जी सर. ओके अभी हम लोग यहाँ से मैं छठा पे करने वाला हूँ। When you add 6 drops, अब बताओ 6 में क्या क्या होगा तुम्हारे सिस्टम में? क्या क्या होगा? NaCl तो Cl तो तुम्हारा 5 ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं, राइट? सर 5 Cl,
बोलो। 6 Na प्लस और 1 OH माइनस। OH minus. सो यू हैव 1 2 3 4 5 6 और 1 OH एक माइनस। OH अब आप बताओ मुझे इन दोनों में कंडक्टेंस इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, ये सबको दिख रहा है? क्यों इंक्रीज होगा बेटा? because because OH OH minus is relatively faster. लेकिन ये ध्यान रखो, OH माइनस उतना फास्ट नहीं है जितना H प्लस है। Yes sir. तो जो इंक्रीज होगा, जो इतना डिक्रीज हो, यहाँ से जो ये डिक्रीज हुआ है, उसका जितना इंक्रीज होगा उससे कम इंक्रीज होगा। Yes sir. क्या यस सर क्वेश्चन पूछा है? अच्छा सर कम इंक्रीज होगा पर इंक्रीज होगा। हाँ तो आप को समझ में आ रहा है? आपका जो ग्राफ बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा आएगा, V ऐसे आएगा। देखो पहली बात, you understand this, why is there's a decrease here? This decrease in the जी सर। conductance is because of the replacement. Replacement of H plus by Na plus. Yes, replacement of fast moving H plus by slow moving. Na plus. Na plus। At this point all your H plus is over, correct? जी सर Yes sir. इसके बाद ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? because OH OH माइनस minus का एडिशन हो रहा है। You are adding a relatively fast moving OH minus. But this OH minus, now for example, if this OH minus also moved as fast as H plus, अगर उन दोनों का स्पीड होता था तो ये क्या होता था, तुमको एग्जैक्ट ऐसा एक V मिलता था। ये जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही Yes फास्ट sir. इंक्रीज हो रहा है। लेकिन OH माइनस मूव्स स्लोअर देन H प्लस, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये जो सेकेंड लाइन है, ये इसका स्लोप इसके स्लोप से कम होगा। ये, इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes तो sir. तुम लोग जब न्यूमेरिकल, तुम लोग ये जब प्रैक्टिकल करोगे, फाइनल एग्जाम होगा, योर क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड ये ग्राफ क्यों डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज क्यों होता है, एंड इन दैट यू हैव टू आंसर दैट यूजिंग दिस क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू से 5 6, you say that initially it decreases because Fast moving H plus is replaced by slow moving Na plus. very good. Is this clear? तो जी सर आपका एक्चुअली एक प्रैक्टिकल का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ओके ठीक है। जी सर ओके तो अभी हम लोग किताब में चलते हैं। व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी? आज हम लोग बहुत बड़ा नहीं करेंगे। आयनिक मोबिलिटी इज नथिंग बट द स्पीड विथ विच an ion moves when actually तुम लोग चाहो तो please write down the definition. It's ionic mobility is defined as the speed with which, the velocity with which an ion moves when it is placed between two plates of 1 centimeter apart and the EMF is 1 volt. Yeah, ऐसा ठीक है। रुको, क्या दिख रहा है तुम लोगों को? MS वर्ड खुल क्यों नहीं रही?
ये जो कंप्यूटर है इसमें प्रॉब्लम ही है, कुछ खुलता ही नहीं है पहले का। ठीक है, जाने दो। सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज, एक छोटा सा ये है हिटॉफ्स रूल करके देखो नीचे कहीं पे, वी गोइंग टू कम बैक एंड डू दिस। ये जो हिटॉफ्स रूल, पहले हिटॉफ्स रूल पढ़ते हैं, उसके बाद वी विल डू द डेफिनेशन देन। ओके, यहाँ पे you see here you have one electrode here which is positively charged, you have another electrode which is negatively charged, दिख रहा है? Yes, sir. Okay, now you have actually cation and anion plus and minus everywhere. ये जो हम लोग ने ये जो कंपार्टमेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस इज एन इमेजिनरी कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट ऐसे जो तुम्हारे दो प्लेट्स के बीच में जो सॉल्यूशन होता है वो तीन हिस्सों में बंटा नहीं होता है, वो एक ही होता है, लेकिन हम लोग उसको तीन हिस्से में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हाउ विल वी डिसाइड दिस डिस्टेंस? ओके, सपोज देखो, नाउ लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। आई हैव दीज टू प्लेट्स, ये प्लस है, नहीं इसको माइनस करता हूँ ताकि तुम्हारे किताब के साथ सेम रहे। ये माइनस है और ये प्लस है, एंड यू हैव ओके कैटायन हर जगह है, ये ब्लू कैटायन है, राइट? और लेट्स से ये तुम्हारा एनायन है, वो भी हर जगह है। नाउ लेट्स से anion moves with the speed of let's say 1.5 centimeter per second। anion का स्पीड कितना है? 1.5 centimeter per second. मतलब क्या है? Means in 1 second it covers the distance of 1.5 centimeter. ओके, एंड लेट्स से तुम्हारा ये क्या था, ये कैटायन था, ये जस्ट मुझे याद रखना चाहिए। ये आपका नहीं, ये एनायन था, ये इधर मूव करेगा, ये आपका एनायन था, एंड लेट्स कॉल दिस कैटायन। ये जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से कैटायन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2 centimeters per second। व्हाट डज दिस मीन? Cation will move fast. ओके, यानी कैटायन जो है 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में कवर करेगा। ओके, तो अभी आप बताओ, ये जो सब जो पिंक है किधर जाएगा? पिंक देखो, ये ध्यान रखो माइनस है, एनोड की Anode के तरफ। पास प्लस की तरफ की माइनस की तरफ, plus प्लस प्लस की तरफ। लेफ्ट की तरफ की राइट की तरफ, left. लेफ्ट। सब पिंक इधर जाएगा, राइट? जी सर। और सब ब्लू, राइट की राइट तरफ। साइड में। ओके। तो आप मुझे बताइए, एक सेकंड में कौन से पिंक इधर पहुंचेंगे? जो एनोड के करीब है। कितने करीब? 1.5 सेंटीमीटर करीब है। और 1.5 से कम हुआ तो? पहले पहुंचेंगे। नहीं तो और पहले देर से मतलब नहीं है, मेरा सवाल ये 1 सेकेंड से कम में पहुंचेगा। एक सेकंड में कौन पहुंचेगा? जो 1.5 सेंटीमीटर और उससे कम दूरी पर है। जो 1.6 में होगा वो नहीं पहुंचेगा। नहीं, नहीं पहुंचेगा। वो 1 तो ये सेकेंड में नहीं पहुंचेगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन, हम लोग ये लाइन खींचते हैं। ये लाइन जो है मैं कितने दूरी में खींचूंगा? ये मेरे 1.5 सेंटीमीटर में खींचा। हम्म, ये हाउ डू आई डिफरेंशिएट दिस लाइन? इस लाइन की अहमियत क्या है?
इस लाइन का मतलब क्या है? कि ये लाइन के अंदर जितने भी अनायंस है वो 1 सेकंड में एनोड के पास पहुंचेंगे। ओके, और जो इधर है वो नहीं 1 सेकंड में नहीं एक पहुंचेंगे। सेकंड में नहीं। ओके, अब इधर की बात करते हैं। यहाँ पे कौन जा रहा है? ब्लू जा रहा है। कौन से कैटायन इसके पास, इस माइनस के पास पहुंचेगा? जो 2 सेंटीमीटर और उससे कम की दूरी पे। तो ये जो है, ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में तक जितने आपके कैटायंस हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। और यहाँ पे ना, ये जो तीसरा जो ये यहाँ, इसमें जो कैटायन है, एनायन है, वो ना इधर पहुंचता है ना उधर पहुंचता है। इज दिस ओके? जी सर। ओके, अब ये समझ में आया आप लोगों को? अभी हम लोग एक छोटा सा हमारे किताब का ये वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ पे ये लोग ने क्या किया है, देखिए, इसको कैसे पढ़ना है। यू रीड ओनली दिस पार्ट फर्स्ट, ऊपर वाला, नीचे वाला मत पढ़ो। सो यू हैव दिस कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, यू हैव एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके ऐसा माना जाएगी, ये जो कंपार्टमेंट है, मैंने अभी आपको बताया कि ये कंपार्टमेंट बनता कैसा है, राइट? यहाँ पे देखिए कितने प्लस है? 6 प्लस है, 6 माइनस है। दिख रहा है सबको? जी सर। यहाँ पे भी 6 प्लस है, यहाँ पे भी 6 माइनस है। इससे आप इनके बीच में, इस इन दोनों के रिलेशन के बीच में क्या बता सकते हो? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? प्लीज रिमेंबर, प्लस माइनस होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे आपके पास 6 प्लस है, यहाँ आपके पास 6 प्लस है, यहाँ आपके पास 6 माइनस है, यहाँ पे आप 6 माइनस है। इस इंफॉर्मेशन से व्हाट कैन यू से अबाउट दीज डिस्टेंसेस? कौन सा बड़ा होगा? सर बोथ आर सेम। दोनों सेम होंगे ना, दोनों सेम होंगे तभी तो यहाँ पे भी 6 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। क्योंकि हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्लस और माइनस जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? अनायन एंड कैटायन की दोनों की साइज सेम है साइज से मतलब नहीं है। क्या सेम है? और वेलोसिटी भी सेम है। नहीं, साइज जरूरी नहीं है। साइज इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स। वेलोसिटी दूसरे चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं, बट वी नॉट वरी अबाउट दैट। व्हाट वी आर वरी, वी कैन कंक्लूड इज दैट दोनों के वेलोसिटीज वेलोसिटी सेम। सेम है। यानी एक इधर जाता है तो उस समय एक इधर जाता है। ये इज इट ओके? सो नाउ लेट्स Yes, sir. हीटॉस रूल पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने करंट ऑन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 प्लस है, यहाँ 6 माइनस है, यहाँ पे 4 प्लस है, 4 माइनस है, 6 प्लस है, 6 माइनस है। लेकिन वो वैसे के वैसे है, क्योंकि आपको ना प्लस इधर मूव हो रहा है ना माइनस उधर मूव हो रहा है। यानी कि आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अभी ऑन नहीं किया। नहीं किया। नहीं सो किया। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट ऑफ माई diagram. Is okay? So when electric current is passed through a solution, the concentration of the solution changes in the vicinity यानी नजदीक, vicinity of the electrodes. नजदीकी क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि हम लोग ये देखेंगे, ये जो प्लस है इधर जाके ये डिस्चार्ज हो जाएगा ना, ये जो है न इधर जाता है न इधर जाता है। सो वी विल सी दैट ये जो मिडिल वाला कंपार्टमेंट है इसके कॉन्सेंट्रेशन सेम रहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस कहाँ पे होते हैं? जो
आपके इलेक्ट्रोड के पास में जो solution है नजदीक हम लोग वो देखेंगे. This change in concentration is directly proportional to the velocities. Velocities depend करता है कि वो कितना मूव करेगा. Now situation can be understood by, यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, इक्वल स्पीड v प्लस इज इक्वल टू v माइनस. ये हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग v प्लस इज इक्वल टू v माइनस ही करते हैं. ठीक है, यानी आपके केटायन और एनायन सेम वेलोसिटी से जा सेम रहे हैं. वेलोसिटी. सेम वेलोसिटी से मूव होता है. Okay. Now, imagine the two planes divide the cell into three compartment. हम लोग ने ये जो प्लेन इमेजिनरी प्लेन है इसने इसको तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया. एनोडिक कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट. लेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन एनोड कैथोड बी 6 ईच एंड बीच में 4 है. यहाँ तक ठीक है. And let's assume that 4 Faradays of electricity is passed through the solution. कितना electricity? 4 Faraday. Now, case 1 when the speed of ion is equal. दोनों के स्पीड सेम है. कितना करंट फ्लो हो रहा है ये ध्यान रखो. कितना करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है 4 Faraday 4 Faraday. Okay. 4 Faraday यानी देखो, let's just read this. The solution of the system at the commencement of electrolysis यानी शुरुआत में is shown by stage 1. Stage 1 यानी हमने अभी electrolysis शुरू नहीं की, नहीं किया. Due to the passage of 4 Faradays of electricity through the solution, 4 equivalents of negative will give up 1 electrodes and 4 इधर जाएंगे 4 इधर जाएंगे. तो यहाँ पे देखो कितने प्लस इधर गए, 4 4. कितने माइनस इधर गए, 4 4. क्यों? Because we have assumed that 4 Faraday. तो अभी देखो, अभी नाउ रीड दिस सेकंड लाइन. अभी हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आयन डिस्चार्ज हुए. तो कितने एनायन बच गए, 6. शुरू में 6 ही था ना. कितने Yes, sir. एनायन यहाँ पे बच Yes, गए, sir. देखो यहाँ पे शुरू में 6 था. 2 बच. नहीं, अभी 6 ही बचेंगे, 6. 6 बचेंगे. वो बॉक्स को जाने दो. ये 4 इधर चला गया, कितने कितने केटायन बचेंगे यहाँ पे, 2. 2 यहाँ पे 4 माइनस इधर चले गए तो कितने माइनस बचेंगे, 2 2 2. 2. ठीक है. और ये जो प्लस है वो जो करते हो वैसे ही है, ये प्लस जो करते हो वैसे ही है, यहाँ पे माइनस जो करते हो वैसे ही. ये आपका सेकंड केस हो गया. ठीक है. Yes, sir. ओके. अब तीसरा अब ये जो 4 है, 4 फेराडे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, राइट. अब फेराडे 4 इलेक्ट्रिसिटी ये जो है फ्लो हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन, राइट. ठीक Yes, है. sir. अब कैटायन और एनायन का स्पीड सेम है, तो कैटायन का हिस्सा कितना होगा, 2 फेराडे. Yes, sir. हाँ सर. और एनायन का दो. कंट्रीब्यूट 2 होगा. 2. ये 2 क्यों आया, क्योंकि 4 Faraday है. क्योंकि टोटल 4 फैराडे है और वेलोसिटी दोनों की सेम है. दोनों के सेम है. हाँ. अगर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज यहाँ पे 4 की जगह पे लेट्स से 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, तो ये सेकंड कैसा होता था, आप बताओ. इफ 6 3 अनायन और 3 कैटायन. 3 कैटायन. हाँ. नहीं, मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा हूँ. पहले में क्या था, 6 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 4 माइनस Yes, 6 sir. प्लस 4 माइनस 6 प्लस 6 माइनस. ठीक है. Yes, sir. इसमें से 4 फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, 4 नहीं 6, तो ये क्या हो जाएगा. ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल.
ये मेरा प्लस है, ठीक है, ये मेरा माइनस है, एंड लेट्स से दिस इज माय इमेजिनरी कंपार्टमेंट, ठीक है। लेट्स अज्यूम आई हैव 20 प्लस, आप लोग मेरे साथ लिखो, आई हैव 20 माइनस, I have, let's say again, 20 plus, 20 minus, and let's say I have 15 cations and 15 anion. शुरू में लिखो आप लोग, ये लिखा? जी सर। अब लेट्स से एट फैराडे electricity passes through this. अब क्या होगा, अब बताओ। प्लस इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा, राइट? कितने माइनस इधर जाएंगे? 8. 8. तो यहाँ पे क्या बचेगा? कितने प्लस बचेंगे? 20 प्लस 20 12. प्लस, वेरी गुड, 12 माइनस 12 माइनस, यहाँ कुछ होगा नहीं, 15 प्लस 15 माइनस सो ये है 12 प्लस 12 plus 20 20 minus. माइनस और यहाँ पे 12 प्लस 20 माइनस 12 plus 20 minus. क्या है समझ में? Is जी this सर. clear till now? Now, जी सर. 8 Faraday's movement is because of the movement of 8 ions. क्योंकि दोनों को वेलोसिटी सेम है, तो प्लस की वजह से कितना फैराडे होगा? 8. 4 प्लस की वजह से 4 फैराडे होगा, और माइनस की वजह से 4 फैराडे 4. होगा। ये इज दिस क्लियर? जी सर. ना, विच मीन्स अभी न्यूट्रलिटी के लिए अब क्या होगा? अब से अब मैंने ये बोला कि माइनस इधर गया, माइनस कम हुआ ना इधर, माइनस किधर मूव करेगा? प्लस की यस सर। लेफ्ट की तरफ, के राइट की तरफ? Left. सर लेफ्ट। लेकिन देखो अभी मैंने क्या बोला है, सिर्फ मैंने इसके माइनस को बोला, ये क्यों मूव नहीं करेगा? ये भी तो करेगा ना, ये माइनस भी तो इधर मूव करेगा ना बेटा। यस सर। यस सर. Yes sir, करेंगे. करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 4 फैराडे इधर चला जाएगा, 4 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलो आप मुझे, कितना माइनस हो जाएगा? 8 अरे इधर से 4 गया राजा, सर कहाँ से? 16. 16. इधर से इधर 4 गया, 16 minus 16 sir. minus 16 minus. यहाँ का जो गया वो तो आप लोग ने पहले ही देख लिया ना। सी ऐसे ये नहीं होने वाला कि ये पहले होता है और ये बाद में, ऐसा होता है नहीं, एक साथ होने वाला है। मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इनको दो हिस्से में बांट रहा हूँ, कि अभी पहले सिर्फ यहाँ से माइनस जाएंगे, यहाँ से प्लस जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्लस लेके जाऊंगा और यहाँ से माइनस लेके आऊंगा। इन रियलिटी बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हैपन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे माइनस कितना रहेगा? 16. 16. 16 यहाँ पे कितना माइनस रहेगा? 4. 15. 11 15. 11. 15. 15. क्योंकि सर ये -20 जो राइट साइड में वो उस तरफ गए, उसमें से 4, और यहाँ पे 16 माइनस बचेंगे. यहाँ से 4 जाएगा तो यहाँ से भी तो 4 आएगा ना। हाँ सर। यस सर. यहाँ कितना बचेगा? 16. 16. ओके, अब आप बताओ यहाँ कितना बचेगा? 12. नहीं 16. 16 प्लस यहाँ 15 प्लस 15 प्लस यहाँ 16 प्लस 16 प्लस. इज दिस क्लियर? यस जी सर. सर. तो यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज देखते हैं।
पहली बात ये है कि जो मिडिल वाला कंपार्टमेंट है, देखो एक्चुअली इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, दिख रहा है? यस सर। Yes, 15 sir. प्लस था, 15 माइनस था, 15 प्लस था, 15 माइनस था, 15 प्लस था, 15 माइनस था। तुम्हारे एनोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? Decrease. Change. decrease, तुम्हारा कैथोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? Decrease. change, ये Decrease. कितने से कम हुआ? कितने से कम हुआ ये? 4, 4। यहाँ कितने से कम हुआ? 4. 4, 4. If I take the ratio of decrease in the concentration of anodic compartment by cathodic compartment, वो कितना आता है? 1. 1, 1:1। 1:1. And what is the ratio between the velocities? 1:1. 1:1, यही आपका हीटऑफ्स रूल है। हीटऑफ्स रूल ये बोलता है द रेशियो इन द ऑफ द डिक्रीज इन द concentration of anodic compartment by cathodic compartment is the same as the ratio in the velocities of the cation and the anion. Is this clear? Yes, sir. yes sir, यस Okay. सर। डोंट वरी, हम लोग और 2-3 केसेस करेंगे तो आपको समझ। ये मेटाऊं मैं? जी sir. यस सर। जी sir, ओके, आपके किताब का देखते हैं। देखो किताब में क्या किया है, दे हैव टेकन, कितना लिया है, 1 2 3 6 प्लस लिया है, 6 माइनस लिया है, 4 प्लस लिया है, 4 माइनस लिया है, यहाँ पे 6 प्लस लिया है, 6 माइनस लिया है। नाउ यू हैव 4 फैराडेज, यानी कितना प्लस इधर चला जाएगा? 4, 4। तो आपको 2 प्लस बचा, 6 माइनस बचा, ये 4 प्लस है, 4 माइनस है, यहाँ पे कितने प्लस बचेंगे? 6 प्लस और कितने 6 माइनस? plus, 2. 2 minus, 2 माइनस। अब 4 है, इट विल बी 2 का मूवमेंट होगा। जी sir, यस। तो ये देखो 2 इधर चला गया है, 2 माइनस, 2 माइनस इधर चला गया है। Sir. हाँ बोलो। Sir, in case 1, because of 4 Faraday, shouldn't it be 2 positive and 2 negative? कौन सा बेटा? Case 1 में. यहाँ इस पे? Yes. Yes, sir. नहीं, यहाँ तो तूने अभी इलेक्ट्रिसिटी ऑन ही नहीं किया, ये शुरू का है। तो मैंने यहाँ 6 रखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 20 रख के दिखाया था, सेम हुआ था ना आंसर। Okay, sir. हाँ. दिस पार्ट इज बिफोर यू स्टार्ट द इलेक्ट्रोलिसिस। जी ओके, sir. उसके बाद ये 2 पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होने के बाद है। एक्चुअली दरअसल दोनों एक साथ होता है, लेकिन हम लोग उसको 2 अलग अलग हिस्सों में बांट के कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 प्लस 6 2 माइनस हो गया, 4 प्लस 4 माइनस है, 2 प्लस 6 माइनस है, क्योंकि 4 फैराडे है तो 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका 4 प्लस है, 4 माइनस है, चार प्लस है, 4 माइनस है, यहाँ पे भी 4 प्लस है, 4 plus 4 minus, 4 माइनस, यहाँ पे माइनस। 4 minus. 4 plus 4 4 माइनस। तो यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन constant है, Same rate. Same है. होता है। Same है। यहाँ डिक्रीज कितने से हो रहा है? 2 से। 2 से, 2. यहाँ डिक्रीज कितने से हो रहा है? 2 से, 2। 2 से। सो व्हाट इज द रेशियो? 2:2, 1:1। 1:1. 1:1. So the sorry sir, velocities are also, the ratios are 1:1. 1:1. is okay. जी sir, यस सर। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दिस, सेकंड वाला जो है आप लोग करके देखो। और एक तीसरा करेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए आपके पास ये 6 प्लस 6 माइनस, देखो ये नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपका 4 प्लस है, 4 माइनस है,
या 6 प्लस है 6 माइनस है ना 4 फैराडे फ्लो हो रहा है राइट कितना 4 फैराडे 4 4 तो 4 इधर Four. गया 4 इधर गया तो ये 6 हो गया ये 2 हो गया ये 4 का 4 है ये 2 हो गया ये 6 हो गया ये सेम हो गया राइट जी सर यहाँ पे Yes, sir. हमारा जो केस है V1 V प्लस एंड V माइनस सेम अलग है देखो कहाँ है हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस V प्लस डिवाइड ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ V प्लस डिवाइडेड बाई V माइनस इज इक्वल टू 1/3 है शायद आप देखो किताब में क्या लिखा है V प्लस डिवाइडेड बाई V माइनस हाँ, इज इक्वल टू सर। 1/3 कौन बड़ा है V प्लस बड़ा है कि V माइनस बड़ा है V V plus. प्लस ओके लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस इसको इधर लेके जाओ तो व्हाट विल यू हैव इक्वेशन क्या रहेगा 3V प्लस 3V प्लस इक्वल्स 1V माइनस और V माइनस V माइनस कौन बड़ा है अभी आप बताओ V माइनस V minus. V माइनस बड़ा है ना ये नंबर इतना छोटा है कि आप उसको जब 3 गुने से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो इसके बराबर हो रहा है अच्छा जी सर आसिया है बहुत देर से आवाज नहीं सुनाई दे रहा है है सर हाँ इज इट ओके यस जी सर सर तो कौन ज्यादा फास्ट है प्लस की माइनस V minus. V माइनस माइनस जो माइनस है 3 गुना फास्ट है प्लस से इसका मतलब ये समझ में आ रहा है जी सर इसका मतलब है जो 4 फैराडे है उसमें से माइनस की वजह से कितना फैराडे होगा माइनस का मूवमेंट 3. माइनस की वजह से 3 होगा और प्लस की वजह से 1. एक एक अभी आप देखो देखो 3 माइनस इधर जा रहे हैं दिख रहा है Yes, sir. 3 क्यों जा रहा है समझ में आया और देखो Yes, sir. प्लस प्लस सिर्फ एक जा रहा है देखो अभी क्या हो जाएगा पहले क्या था 4 6 6 4 4 6 6 था फिर उसके बाद ये 6 2 4 4 2 6 था अब यहाँ से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा पहले 2 था यहाँ से 3 आ गया तो कितना हो जाएगा 5. 5 यहाँ से 3 गया तो 1 बचा लेकिन यहाँ से 3 आया तो ये कितना हो जाएगा 4 4 पहले 6 था 6 में से 3 गया तो इधर किधर रहेगा 3 3 3 3. ये इज दिस ओके माइनस पार्ट जी Yes, सर sir. यस सर अब प्लस पार्ट देखो प्लस सिर्फ एक जा रहा है यहाँ 6 था 6 से इधर एक गया तो कितना बचेगा 5 5 5 यहाँ पे क्या है यहाँ से एक गया लेकिन यहाँ से भी एक गया तो यहाँ कितना बचेगा प्लस 4 4 यहाँ 2 था वहां से एक आया तो कितना हो जाएगा 3 3 तो अगेन लुक हियर तुम्हारा सेंट्रल कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ नहीं हो नहीं रहा एंड अनदर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज दैट हर जगह पे देखो आपका हर एक कंपार्टमेंट का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है यहाँ 6 प्लस 6 माइनस था यहाँ पे 5 प्लस 5 माइनस है यहाँ पे 6 प्लस 6 माइनस था यहाँ पे 3 प्लस 3 माइनस है न्यूट्रल है कि नहीं है यस सर है सर व्हाट इज द डिक्रीज हियर 1 plus 1 1 व्हाट इज द डिक्रीज हियर 2 आई 2 कैसे होगा 1. नहीं शुरू में कितना था 3 3 3 3 सो व्हाट इज द रेशियो 1:3 1:3 that is the same as the ratio of their velocities Yes, Okay. sir. जी सर okay तो मैं अभी आपको एक Kitto's rule पढ़ता हूँ then we'll do some other one more case
This leads to a hit of rule. देखो लॉस इन द इक्विवेलेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन है और कुछ नहीं. The concentration is expressed in terms of equivalents. By the way, when we say equivalent, it means it is gram equivalent. Loss in equivalents of cation in cathode divided by loss in equivalents of anions at cathode is equal to V plus divided by V minus. ठीक है, ये पार्ट हम लोग किया नहीं है. So ratio of their change in concentration is equal to ratio of their velocities. Velocities. is okay. जी sir. Okay, if their Yes, sir. velocity, now let's say if their velocities are, let's say, V plus divided by V minus is 5. कौन बड़ा है? V plus. कितने गुने से बड़ा है? 5. 5. 5. तो अगर हम लोग ये दोबारा करेंगे तो हम लोग को लगना चाहिए एक साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितने से कम होना चाहिए? 5 दूसरे साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितने से कम होना चाहिए? 1 बिकॉज 5 इज नथिंग बट 5/1. हम लोग ये करके देखते हैं. ये एक्सपेक्टेड आंसर है, ये आना चाहिए आपको. ओके, नाउ लेट्स डू दिस. अभी आप लोग करो मेरे साथ. अगेन ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है. ठीक है, ये मेरा पहला केस है. यस, 6. अभी बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं. तुम लोग सोचो. लेट्स से आई हैव 30 प्लस 30 माइनस एंड ठीक है. मैं अभी तो हम लोग ने ये दोनों सेम लिया है, जरूरी नहीं है सेम हो. मैं इसको लेट्स से ओके इसको 60 करो. ओके 60 प्लस 60 माइनस एंड लेट्स से दिस इज 12 प्लस 12 माइनस एंड लेट्स से दिस इज 20 प्लस 20 माइनस. मैं आपको ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये नंबर सब सेम होना जरूरी नहीं. जी सर. And let's say I have 6 farads of electricity passing through. चलो करके बताओ मुझे. सर वो 20 है या 25 in the middle? 20 है. 25 किया तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं 20 वाले को, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 लिखा. अभी आपको क्या करना है? स्टेज 2 और स्टेज 3 बनाना है. 1 मैंने बना दिया है, 2 और 3 बनाना है. And you have 6 farads. Sir 60 plus 60 plus 60 minus 20 plus 20 minus 12 plus 12 minus. सर केस 2 का बता रहे हैं. अच्छा बोल. 60 plus 54 minus 60 plus 54 minus 20 plus 20 minus 20 plus 20 minus 6 plus 12 minus 6 plus 12 minus. 12 minus. ओके, यहाँ तक किसी के अलग आए? आज तो क्लास ऐसे ही. 6 बच्चे हैं, क्या करेंगे अभी? अशफाक कितना आ रहा है? Third case 57 plus 57 minus कौन सा स्टेज की बात कर रहे हैं? third. नहीं सेकंड की बात कर रहा हूँ. यही आया क्या? Same है sir.
ओके, तू स्टेज 3 तू बता। 57 प्लस 57, ठीक है। मैं जस्ट तुम जो बता रहे हो वो लिख रहा हूँ। हाँ, कितना माइनस? 57 माइनस ओके, यहाँ 20 प्लस 20 माइनस यहाँ पे 9 प्लस 9 माइनस ओके। किसी के अलग आंसर आ रहे हैं? अमीना तेरा क्या आ रहा है बेटा? सोनाली तेरा कुछ हो रहा है? सर कर रही हूँ मैं। ओके, आसिया तेरा आवाज नहीं आ रहा बेटा। सर कर रही हूँ। हम्म, So can I start from cathode side? बोल ना। सर 9 प्लस के बजाय 7 प्लस होगा। ओके, तेरा आंसर अशफाक से सेम है कि अलग है? अलग है सर। ओके, तेरा बताओ, ये अशफाक का है। हाँ, अमीना का बताओ। बोल। एक मिनट सर। हम्म, और बाकी किसी के भी? अशफाक जस्ट चेक करो तेरा। इतना देर नहीं लगता रे बाबा। फातिमा है? यस सर। हाँ, तेरा भी आवाज नहीं आ रहा है। सर कर रहे हैं सर। सर मेरा सेकंड स्टेज ही अलग आया। ओके, तेरा सेकंड स्टेज बता। प्लस 59 59 प्लस माइनस 55। तेरा बेटा सेकंड स्टेज में सिर्फ एक का ही वैल्यू चेंज होगा, मालूम है? दोनों के वैल्यू चेंज नहीं होते। इसका मतलब तुम कुछ तो गलत कर रही हो। ये ओके सर नहीं बोल ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन कम से कम एक ही वैल्यू चेंज हो रहा है तो इट मेक्स सेंस। दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब ये तो मतलब, तो अगर कुछ देखे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सही नहीं होगा। सेकेंड स्टेज में देखो, आपका सिर्फ एक का वैल्यू चेंज होता है, दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होता।
इतनी देर नहीं लगना चाहिए रे बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग एक साथ करते हैं, ठीक है। अगला तुम लोग दोबारा कर लेना। दोबारा करें या तुमको ही करना है? यस सर। क्या करना है तुमको? करना है मुझे मैं करूं? सर 2 मिनट। ओके। सर बिकॉज आपने v प्लस v माइनस का रेशियो 5:1 लिखे तो गलती से वही सोच रही थी मैं थर्ड केस के लिए। ओके सोनाली कहाँ अटकी? सोनाली लोखंडे है? करके गई? कौन कौन है? सर मेरा सोनाली। सेकंड स्टेज तक आया है, मेरा थर्ड नहीं आया, जम रहा मुझे। ओके। फातिमा। सेम सर, सेकंड तक आ गया, थर्ड वाले पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके फहीमा। यस सर। हाँ कहाँ तक पहुँचे? सर मेरा सेकंड स्टेज भी नहीं आ रहा है। अशफाक। अशफाक का तो सर मेरा आंसर। थर्ड स्टेज अलग आया है। ओके और आमीना तू कहाँ पहुँची? सर थर्ड स्टेज कर रही हूँ। ओके सुनो हम लोग करते हैं दोबारा। देखिए सर मैं थर्ड स्टेज का बोलूँ आंसर? मैं बताता हूँ, तुम लोग आंसर देख लेना, ठीक है? ठीक है। जी सर। जी सर। ओके so you have 60 प्लस 60 माइनस, हाँ ये मेरा प्लस है, ये ध्यान रखो, ये मेरा माइनस है। so you have 60 plus 60 minus, you have 20 plus, you have 20 minus, you have 12 plus 12 minus। ये तो क्वेश्चन ही है, राइट? जी सर। प्लस की तरफ कौन जाएगा? माइनस। 6 माइनस माइनस। तो ये जो है -54। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये जो और जो प्लस है ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये तुम्हारा डायरेक्शन है, राइट? यहाँ तक ठीक जी है? सर। यस सर। जी सर। 6 फैराडे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब 6 इधर चला जाएगा, 6 प्लस तो बचा कितना? कितना प्लस बचा? 6 प्लस 6 प्लस कितना माइनस? अभी तो माइनस के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, राइट? यहाँ पे 20 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 20 माइनस यहाँ पे 60 प्लस 54 माइनस 64। अब कम से कम सेकंड स्टेप सबके सेम आ गए। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखिए v प्लस डिवाइडेड बाई v माइनस इज 4 5:1, इसको हम लोग लिखते हैं। सो v प्लस इज इक्वल टू -5v। 5 टाइम्स v माइनस, कौन बड़ा हुआ? v प्लस V कितना गुना? प्लस कितने गुने से? 5 5। इट मीन्स आउट ऑफ 6 पर डे
5 Faraday will be because of plus, and 1 Faraday will be because of, minus. ये देखो बहुत लोगों को यहीं पे अटक जाता है, हाँ सर, यही नहीं आ रहा था। लेकिन ये समझ में आया कैसे किया मैंने। जी सर। पहली बात आप लोग ये निकालो कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, कितने गुने से बड़ा है वो देखो, उसके बाद जो फैराडे है उसको उसी गुने में तोड़ो। You have जी सर। 5 Faraday will be because of plus, 1 Faraday will be because of minus. इसका माइनस। मतलब जो माइनस इधर जो मूव होगा, माइनस ऐसे मूव हो रहा है ना इधर, कितने माइनस मूव होंगे? एक। एक। तो ये कितना माइनस हो जाएगा इधर? 55 55 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 20 plus 20 minus. 20 minus और यहाँ पे 11 ओके, यहाँ पे कितना प्लस? 55 प्लस 5 प्लस जाएगा ना, और यहाँ पे 20 रहेगा, और यहाँ पे 11 plus 11 आप यहाँ पे देखो फ्यू थिंग्स, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है मैं कुछ तो थोड़ा बहुत शायद ठीक ही कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। constant है। इट लुक्स गुड। यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है देखो, 5 से डिक्रीज। यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है? 1। व्हाट इज द 1 रेशियो? 5:1 सेम एज वेलोसिटी। सेम एज वेलोसिटी। अशफाक, यस सर। सर वो रेशियो ध्यान में नहीं था, 5:1 लेना है, मैंने 1:1 का बनाया था। 1:1 कैसे लेगा? नहीं वो सर 3/3 3/3। है समझ में? यस जी yes सर। sir यस सर करें? हाँ जी सर सर। यस सर। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रहने दो, ये 60 रहने दो, वो रहने दो, इसको हम लोग चेंज करते हैं। लेट्स मेक दिस 24, 24 प्लस 24 माइनस, ओके, एंड लेट्स से you have 9 Faraday. V plus V minus is 1/3. चलो करो बताओ। सर सर सेकंड केस का बता रहे हैं 60 प्लस 51 माइनस 60 plus 51 माइनस 20 प्लस माइनस
15 plus 24 minus थर्ड का इसका बताओ सर 61 plus नहीं सर थर्ड का इसका कैसे करते हैं 61 कैसे होगा राजा? बढ़ेगा कहीं नहीं ना, हर जगह कम होने वाले हैं। तुमने 60 से शुरू किया, 61 सर कैसे होगा? 52 माइनस होगा ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं लिख देता हूँ। 52 क्या 52 माइनस प्लस पहले बताओ ना। सर अभी जस्ट कर रहे हैं ना हाँ तो करने के बाद बताओ ना बेटा। ओके सर ठीक है हाँ सर बोल। सर 57 प्लस एक मिनट। 52 माइनस देखो सीधा तेरा यही गलत है, न्यूट्रल नहीं। समझ रहा गलत है सर अरे राजा न्यूट्रल होना चाहिए ना। सर 57 माइनस आएंगे 57 प्लस इसलिए नहीं सर ये 80 आए। यस सर तेरा बोल, नंबर बता, बोल ना। सर 57 प्लस 57 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 18 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 20 माइनस, और ये कितना बेटा? 18 कम से कम देखो न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है, तो अच्छी बात है। इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, वो अच्छी बात है। इसका कितने से कम हो रहा है? 3 यहाँ कितने से कम हो रहा है? 6 व्हाट इज द रेशियो? 1/2. 1/2। इज इट द सेम? इज इट द सेम? नो सर तो इसका मतलब या तो तुम गलत हो या फिर हिट ऑफ गलत है। मेरा बेट सर तो 2 मिनट अरे 5 मिनट ले रहे बाबा, तो पिछले 5 मिनट से 2 ही मिनट कर रही है।
सर 21 प्लस और 21 किधर? सर लास्ट वाले कॉलम में यहाँ 21 है। सर। हाँ ये सर 18 की बजाय 21। फातिमा है ना? जी सर। और इधर बेटा सर ये सब सेम है 57 प्लस 57 माइनस 20 प्लस 20 माइनस। ओके फातिमा, तेरा यहाँ पे कितना हो रहा है? 60 से 57 यानी कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 3 3 3। 24 से 21 यानी कितना कम हुआ? 3 कितना कम? सो व्हाट इज द रेशियो? 1:1। सही है? नो सर। सर बोल। सर 57 प्लस 57 माइनस, हम्म, फिर 20 प्लस 20 माइनस, फिर 15 प्लस 15 माइनस। 15। हाँ कम से कम 9 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 3 डिक्रीज हो रहा है, और रेशियो कम से कम 1:3 है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सब ठीक है, पर रेशियो ठीक दिख रहा है। अरे तुम लोग को ये कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा? देखो सुनो इधर, यहाँ तक सबको समझ में आया? जी सर। सर ओके, ये देखिए, v प्लस डिवाइडेड बाई v माइनस इज इक्वल टू 1/3। कौन बड़ा? कौन बड़ा? सर माइनस बड़ा। V minus माइनस यानी कितने गुने से बड़ा? 3 गुना। 3 3 v माइनस इज इक्वल टू 3 टाइम्स v प्लस। नहीं, ये मेरा एक क्वेश्चन ही गलत किया, ये हम लोग को 8 करना चाहिए था, माई मिस्टेक। पता नहीं तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। इसको 9 की जगह 8 करो, 8 करना चाहिए था, 9। 8 करता तो ये क्या हो जाता था, मैं बताता हूँ। देखो 8 करता तो ये क्या हो जाता? 60 प्लस और कितना माइनस होता था? 52 52 2, ये 0 0 होता, और ये 16 और 24, राइट? 24 24 v प्लस छोटा है 1/3, राइट? विच मीन्स देखो, जब माइनस के पास 3 जाएगा। जब v माइनस 3 जाएगा, जब माइनस 3 जाएगा तब प्लस 1 जाएगा। ओके, तो 3 माइनस भेजो। देखो यहाँ 52 है, यहाँ से 3 गए तो ये कितना हो जाएगा? 3 गया तो इधर कितना हो जाएगा? 55 हुआ। 3 माइनस गए ना बेटा। कौन सा वेलोसिटी यस ज्यादा सर। है? कौन सा वेलोसिटी ज्यादा है? माइनस। v सर माइनस। अभी समझा। देखो तो माइनस इधर सर 3 पहले हम लोग में से किसी ने भी वो 9 को डिवाइड नहीं किए थे, इसलिए आंसर गलत आ रहे थे। सबने 3:6 लिए। हाँ, अभी देखो तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा। यहाँ 21 की जगह कितना होगा? 3 इधर गया तो यहाँ 21 हो जाएगा। हुआ क्या? हाँ सर 21 हुआ। देखो यहाँ से सी, you have 60 प्लस एंड 52 माइनस, 16 प्लस एंड 24 माइनस। यहाँ तक ठीक है सबको? यहाँ जी ठीक है सर। सब? Okay. Now the ratio is no, so not correct. The ratio is 3:1। यानी जब एक v प्लस एक v माइनस जाएगा, कितना v प्लस जाएगा? नहीं, जब एक v 3 प्लस v प्लस। एक v प्लस जाएगा तो कितना v माइनस जाएगा? 3 3 3 लेकिन दोनों मिला के 3, 3 और 1 मिला के 4 ही होते हैं। हमारा मूवमेंट तो 8 का हो रहा है ना।
हाँ इसका मतलब है 6 माइनस जाएगा तब 2+। 2 प्लस जाएगा। हाँ, अगर ये पकड़ में आया तो बाकी सब पकड़ में आ जाएगा। देखो अब 6 माइनस इधर भेजो, 52 माइनस था, इधर से 6 गया ना, हाँ 6 माइनस गया तो कितना हो जाएगा? 58। 58। 58। विल हैव 58 माइनस, ठीक है। यहाँ 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 16। 16 माइनस बचेगा और ये 20 रहेगा। ओके, अब ये प्लस कितना भेजना है? 2। तो इधर 60 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 58। 58। ये यहाँ से इधर जाएगा, सेम रहेगा ये, और इधर 2 आया तो ये कितना हो जाएगा? 18। 18। ये गलत है ना, फिर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं हो रहा है ना रजन। दो 6, 24 में से, अरे 24 में से 6 जाने के बाद 18 16 कैसे होगा? 24 में से 6 जाने के बाद 16 होता है क्या? 18 होता है। 18 होता है। 18। और ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18। 18। अब ये देखो, ये कितना कम हुआ? कितना? 6। यहाँ कितना कम हुआ? 2। 2। 2। व्हाट इज द रेशियो? 1:3। 1:3। अभी आया? जी सर। करना है? और एक करना है? यस सर। ओके, चलो। इसको ये पहला पहला स्टेप। जी सर। नाउ लेट्स से v plus divided by v minus is 1/5. Okay, and let 12 Faraday of electricity flows through it. ये सेकंड वाला झट से हो जाता है, तीसरे में ही प्रॉब्लम आता है। सेकंड का बताओ कोई। 18 प्लस 30 अब माइनस। ये प्लस था ना, इधर प्लस था, ध्यान रखो, है ना, ये प्लस था ना, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कितना प्लस? 30 18 प्लस प्लस 18 माइनस 30 प्लस 18 माइनस 30 30 प्लस प्लस 30 माइनस, यहाँ यहाँ पे 18 प्लस 30 माइनस 18 प्लस 30 माइनस, यहाँ तक तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, ये रेशियो है।
सर बोलूं? बोलो। 20 प्लस 20 माइनस हम्म 30 प्लस 30 माइनस 28 प्लस 28 माइनस। ये आ रहा है क्या आंसर? यस सर। हाँ सर, Yes, यही है। sir. यस सर। ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. अब कोई एक्सप्लेन करो ये आंसर कैसे आया? बोलो। आज की क्लास यहीं पे खत्म। आफ्टर वी आर डन विद दिस वी आर डन। हम्म सर v प्लस की स्पीड 2 है एंड v माइनस की स्पीड 10 है। 2:10 की रेशियो में है। स्पीड किसका बड़ा है? V minus. v माइनस का। 5 गुने से बड़ा है ना? यस सर। यानी 12 फैराडे जो है वो माइनस की वजह से कितना होगा? 10. 10। 10 होगा। और प्लस की वजह से 2. 2। 10 माइनस इधर जाएंगे और 2 प्लस इधर आएंगे, राइट? यस सर। तो ये 18 था, इधर से 10 गया तो कितना हो गया? 28। 28. 30 वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ 30 था, यहाँ से 10 गया तो कितना बचा? 20। अब 2 इधर आने वाले हैं। ये 2 था, ये 10 था। 30 था तो 2 इधर गए तो कितना बचा? 28। 2 इधर गया, 2 इधर गया तो ये तो 30 रहेगा। और 2 इधर आया तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये डिक्रीज कितना हुआ? 10। ये डिक्रीज कितना हुआ? 2 2। व्हाट इज द रेशियो? 2:10। 1:5। सेम। बस इतना सही है।